Many of you are new to Python, so I have shared a link in the group. You can watch those videos. And also I had shared the website, Learn by Example. You can refer to that as well. So in that on that website and in those videos, you will only get basics of Python. But apart from that, there is something known as integrating libraries, different libraries. So you can imagine Python to be something like Android, and Android has a Play Store on which different applications are there. You can download different applications which can perform different functions, I mean different tasks for you. Similarly, in case of Python, you have different libraries. So you can use those libraries in case you want to perform different tasks. For example, if you want to perform image processing, so I think there is one library known as OpenCV. So using OpenCV, you can do image processing. There is one library known as NumPy. So that is for numerical, that is for doing numerical things, like you want to do differentiation or make an array, two-dimensional, three-dimensional, four-dimensional array, or you want to have sine function, cosine function, like that. So for that for those mathematical operations, we have NumPy, and then for plotting different graphs, we have matplotlib library. So, and similarly, if you want to use machine learning, so there is one library known as scikit-learn. So there are different libraries people have made, and those all those libraries are open source. So you just have to call those libraries, and you can use the functions that are available in those libraries. You need not to write the whole code. Just call the function using those libraries, and your work will be done. It will save a lot of time. Okay, so let me write the assignment question. So, does someone remember what was the question? Solve dy by dt equals to f of y is equals to minus 2y plus 2 minus e raised to the power minus 4t. Okay, so, and I think it was the initial condition was y of 0 is equal to 1, right? Yes, and t belongs to 0 and 10. Like the Yeah, interval so was t was belonging to 0 to 10, and h was 0.1, right? Which yes. was delta t. And what I had also given the exact solution. So exact solution was y is equal to, I think it was 1. Yeah, 1 plus half e raised to the power minus 4t minus half e raised to the power minus 2t. Okay. So did you try to derive this exact solution? How do we arrive at this exact solution? So Using the let me first, yeah, tell me. using generally Runge-Kutta method, I got the solution. Basically. I think your voice is cracking. So Sir, I solved it using fourth order Runge-Kutta method, and I got a value of y is basically around 0.1006. yeah, so you have to use fourth order Runge-Kutta method, but that is a numerical method. I'm asking about the analytical solution which I've given, how we have got this solution. So you should be aware. So actually for this solution, let me use for this solution dy by dt. So this is ordinary linear differential equation, first order linear differential equation. So you can compare it with dy by dt plus p of t times y is equal to q of t. So this is this kind of differential equation, because you can write this differential equation as dy by dt plus 2 of y is equal to 2 minus e raised to power minus 4t, right? So for this kind of differential equation, if you remember, so
The solution was of this kind: y times e raised power p dt is equal to um, e raised power integration of p dt, and then you have q of t, and then integration of whole thing plus c. And you can always go back and look at the proof how we have arrived at this kind of solution. So this is first order non-exact. So this is not exact. So there were two categories in uh, first order linear differential equation. One is exact differential equation, one is non-exact. So this is first order non-exact linear differential equation, and for that you get this kind of solution. So if you substitute, so p of t is 2, right? Here if you compare these two equations, equation number 1 and equation number 2, so if you compare these two equations, you'll get p of t as 2, and your q of t is 2 minus e raised power minus 4t. And if you substitute here, so you'll get e raised power integration of 2 dt is equal to e raised power 2 dt, I mean integration of 2 dt times q of t, which is 2 minus e raised power minus 4t dt plus c. So if you do that, so you'll get y times e raised power 2t, and here also you'll get e raised power 2t, and then you have 2 minus e raised power minus 4t, and then dt, and then integration plus c. So finally, I'm just moving this bracket, this quantity within the bracket, so you'll get something like that, right? Now if you solve this, so you get y into e raised power 2t, which is so the integration of 2 e raised power 2t will be 2 e raised power 2t by 2. So 2 and 2 will get cancelled. So finally you will get e raised power 2t, and here you will get e raised power minus 2t by 2 by minus 2. So minus and minus will be plus. So finally you will get e raised power minus 2t over 2 plus c. So this will be the final thing that you will get. And there is an initial condition that y of 0 is 1. So if you substitute, so substitute t is equal to 0 and y is equal to 1 in the above equation. So if you do that, so here on the left hand side, you will get 1, and on the right hand side, you will get this will be 1, this will be 1 by 2. So from this equation, c will be minus 1 by 2. And if you shift this e raised power 2t to other side, so finally you will get y is equal to 1, because e raised power 2t divided by this e raised power 2t will be 1. And then e raised power minus 2t divided by e raised power 2t will be e raised power minus 4t, and value of c is 1, so this is minus 1 by 2, so minus 1 by 2 will remain as it is, and then this plus e raised power 2t, when you will shift it to right hand side, so it will be e raised power minus 2t. So finally you will get this solution. Is that clear? So that's why I wrote the analytical solution as this way. But here, since this is a course of numerical methods, so I was just trying to tell here that you can always find out the analytical solution of these equations, because these are linear differential equations. But uh, firstly, we want to learn numerical methods. That's why we are starting with linear differential equation. But the real use case for numerical methods will be non-linear differential equation. Anyway, so अब इसको कैसे करना है रंगाकुता मेथड से यूजिंग पाइथन, तो बताओ कैसे करें. तो हमारे पास वी हैव फाइनली dy by dt is equal to minus 2y plus 2 minus e raised power minus 4t, ये इक्वेशन है. तो हम इसको f of yt भी लिख सकते हैं, f of y comma t, right? So this is a function that we have. So रंगाकुता से करना है तो हमें k1 k2 k3 k4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर रंगाकुता यूज करना चाहते हैं हम. So k1 हमारे पास निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए, h of f of yn tn, right? So yn tn क्या निकलेगा हमारे पास, minus 2 yn
प्लस 2 माइनस ई रेस पावर माइनस 14, राइट। एंड इसको h से मल्टीप्लाई कर देना इधर। दिस इज फाइन। k2 क्या निकलेगा? k2 हमारे पास हो गया h टाइम्स f ऑफ yn प्लस k1 डिवाइड बाई 2 एंड tn प्लस h बाई 2। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? h तो ऐसे ही रहेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन में, तो -2 yn प्लस k1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस ई रेस पावर -4 t की जगह हो गया tn प्लस h बाई 2, राइट। तो k2 आ गया। फिर k3 कैसे निकालेंगे? k3 गोज h इंटू एफ ऑफ yn प्लस k2 बाई 2 और tn प्लस h बाई 2 अगेन। सो इसको हम जब फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h तो ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा -2 yn प्लस k2 बाई 2 प्लस 2 माइनस ई रेस पावर -4 tn प्लस h बाई 2, ठीक है। फाइनली k4 क्या बनेगा हमारा? h टाइम्स f ऑफ yn प्लस k3 और tn प्लस h, राइट। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन में तो बनेगा -2 टाइम्स yn प्लस k3, एज इट इज रहेगा, प्लस 2 और t की जगह क्या आ जाएगा? tn प्लस h। यहाँ तक समझ में आया? अब हमारे पास yn प्लस 1 क्या हो जाएगा? yn प्लस 1/6 टाइम्स, मतलब नेक्स्ट टाइम स्टेप पे हमारा जो yn है वो होगा, पिछले टाइम स्टेप पे जो yn है प्लस 1/6 टाइम्स k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, राइट। सो इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है, तो हम इसको कोड करते हैं पाइथन पे। वो कैसे करेंगे? तो जिन्होंने असाइनमेंट कर ली है, आई थिंक आई हैव सीन सम ऑफ देम, दे हैव डन राइट, just writing it for those students who have not done assignments or who are struggling with Python. So again, you can watch videos, read documents, read books, read websites. I'm not going to teach you syntax of Python, but you should be able to develop the logic. Once you are able to develop the logic, learning syntax is not a big thing. It's already available on the internet or in the books, right? So अभी हमें करना क्या है फाइनली? अभी सोचते हैं कैसे लॉजिक बनाएंगे। तो हमें ये दिया हुआ है पहले इनिशियली कि जब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें दिया है कि कोडिंग पार्ट देखते हैं इसका कैसे करेंगे। हमें दिया है कि y ऑफ 0 जो है वो 1 है, यानी हमें टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, और कितने कितने स्टेप्स का इंक्रीमेंट लेना है? 0.1 स्टेप्स का इंक्रीमेंट लेना है। तो यानी हमें दिया हुआ है टाइम t इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, टाइम होगा यहाँ पे और यहाँ होगा y। तो इनिशियल जो टाइम हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टाइम t इक्वल 0 पे y1 दिया हुआ है, तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया है हमें, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूला में अगर देखोगे तो आपको अब हमारा नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 0.1 होगा, क्योंकि हमें 0.1 इंक्रीमेंट लेना है टाइम पे। इसमें हमें y नहीं पता, लेकिन लेट्स से ये हमारा tn yn हो गया, और ये tn प्लस 1 और yn प्लस 1 हमें पता नहीं है, वो तो रंगकूटा मेथड से निकलेगा yn प्लस 1, लेकिन हमें yn पता है, 1 है हमारा yn। तो अब हमारे पास tn yn है, उससे हम k1 निकालेंगे। k1 कैसे निकलेगा? इसको h चाहिए, h हमारा 0.1 है, -2 yn हमारा कितना है? yn 1 है। पहले k1 निकालना पड़ेगा, सॉरी k1 इधर है, हाँ। तो h 0.1 है, -2 yn 1 है, इसमें पुट कर देंगे +2 e रेज़ पावर -4, tn कितना है? 0 है, तो इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो k1 पता लग जाएगा हमें एग्जैक्ट। फिर k2 निकालने के लिए क्या चाहिए? yn पता है हमें, k1 निकाल लिया हमने, k1/2 कर देंगे और यहाँ पे tn प्लस h/2 कर देंगे, सब कुछ तो पता ही है इसमें, तो k2 भी निकल जाएगा।
फिर K3 निकालने के लिए K2 चाहिए, वो भी हमने निकाल लिया है तो K3 भी निकल जाएगा। सिमिलरली K4 निकालने के लिए K3 चाहिए, वो हमने पहले निकाल लिया है तो K4 भी निकल जाएगा। और फिर उनका सबका एवरेज लेके 1/6 कर देंगे, मीन सम सम करके इस तरीके से, और 1/6 कर देंगे तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा yn+1। अब अगली आइट्रेशन के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास अगली आइट्रेशन के लिए, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए t तो जो है वो 0.2 हो जाएगा, लेकिन हमें yn अगेन नहीं पता क्या है, yn+1। सो अगली आइट्रेशन के लिए tn और yn ये हो जाएगा, और tn+1 और yn+1 ये हो जाएगा। ओके, सो अब हमें tn yn पता है, इससे हमारा k1 k2 k3 k4 पता लग जाएगा, और उससे फिर हमारा yn भी, yn तो हमें पता है क्योंकि हमने यहाँ निकाला था yn पहले, मतलब पिछली वाली इटरेशन में। तो इससे हमारा इस आइट्रेशन पे भी y निकल जाएगा। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, और हमें कहाँ तक जाना है, हमें वहां तक जाना है जब 10। तक कि, हाँ सर राइट, 10 ना हो जाए, राइट। और यहाँ पे भी हमारे पास फाइनली y आ जाएगा, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन से। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y एग्जैक्ट, और y एग्जैक्ट तो आपको हमेशा ही पता होगा, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पुट करो तो वो तो दिया हुआ है, वैसे y1 होगा। यहाँ पे दूसरा कलर यूज करता हूँ, ऐसे y1 होगा, लेकिन टाइम t इक्वल 0.1 पे y एग्जैक्ट क्या होगा, सो दैट विल बी, दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ पे डालो t इक्वल टू 0.1, so and then you can calculate what will be your y. Similarly, you put it here, t is equal to 0.2, here and here you will get the value of y. So you know the exact value of y at each and every time step. Okay, so you have to compare the solution obtained from your Runge-Kutta method with that of the exact solution, which you already know. So now let me write down the code for this. यहाँ पे लिख देते हैं, पहले मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा, फिर गूगल को लैब नोटबुक पे भी लिख के दिखाऊंगा। कोडिंग फॉर फोर्थ ऑर्डर, पर इसको फोर्थ ऑर्डर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर तक एक्यूरेसी देता है। टेलर सीरीज में ये, अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे, सो टेलर सीरीज में ये फोर्थ ऑर्डर तक टर्म लेगा, यानी कि अ, ये जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स एन प्लस एच करते हैं, और वाई एन प्लस समथिंग डेल्टा वाई करते हैं, तो वो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच इंटू डेल डेल एफ बाई पार्शियल में नहीं जाते। लेट्स से सिंपल, आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना चाहते हैं, तो टेलर सीरीज से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स डी एफ बाई डी एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर एफ बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब प्लस एच 4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू डी 4 एफ बाई डी एक्स 4। सो वही ये चार, मतलब एच 4 तक टर्म लेगा ये रंगाकुता मेथड, उस टर्म तक एक्यूरेट होगा। जैसे मैंने बताया था टेलर सीरीज मेथड में कि जितनी ज़्यादा हम टर्म्स लेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये टेलर्स इक्विवेलेंट, मतलब टेलर सीरीज जैसा तो नहीं है क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, बट इक्विवेलेंटली उतनी एक्यूरेसी देता है, इक्विवेलेंट टू अगर हम टेलर सीरीज में चार टर्म्स ले लें H4 तक, इसीलिए इसको फोर्थ ऑर्डर रंगाकुता मेथड बोला जाता है। एनीवे मैं डिराइव करके दिखाऊंगा सेकंड ऑर्डर रंगाकुता मेथड के लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि फोर्थ ऑर्डर भी ऐसे ही काम करता है। अकॉर्डिंग फॉर फोर्थ ऑर्डर रंगाकुता मेथड, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एक मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कोडिंग स्टार्ट है, जो भी मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ वो कोडिंग है। सो इंपोर्ट, मैं numpy को इंपोर्ट कर रहा हूँ, numpy एक लाइब्रेरी है पाइथन की। इंपोर्ट numpy, और उसको एज कुछ भी इंपोर्ट कर दो, लेट्स से माय नेम इज शुभम, सो इंपोर्ट numpy एज शुभम, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप अपना नाम भी डाल सकते हो, बट ज़्यादातर आप देखोगे तो स्मॉल रखते हैं क्योंकि इसको बार बार लिखना पड़ेगा। तो इंपोर्ट numpy एज एनपी कर दिया मैंने, एनपी मेरा अपना नाम हो गया। तो ये वाला तीनों चीजें ये फिक्स्ड हैं, बट ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी नाम आपको जो देना है, ठीक है।
तो मैंने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया। फिर मेरे को प्लॉटिंग भी करनी है क्योंकि मुझे कंपेयर करना है एग्जैक्ट सॉल्यूशन और रंगाकुत्ता से जो सॉल्यूशन आ रहा है। तो मैं मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक और सब मॉड्यूल है जिसको हम पाइपप्लॉट बोलते हैं। तो एक लाइब्रेरी के अंदर अगर आपको सब मॉड्यूल उसका कुछ कॉल करना है तो उसको डॉट से कॉल करेंगे। तो मैट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपप्लॉट। पाइपप्लॉट एक्चुअली मैटलैब जैसी, अगर आपने मैटलैब यूज किया है या जीएनयू ऑक्टेव यूज किया है तो उस जैसी प्लॉटिंग प्लॉटिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल कमांड्स प्रोवाइड करता है। इसलिए मैटप्लॉटलिब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर का एक सब मॉड्यूल पाइपप्लॉट हमने इंपोर्ट किया। इसको नाम क्या देना है? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपप्लॉट एज, मैं नाम दे रहा हूँ पीएलटी। तो अगेन ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें तो फिक्स्ड हो गई, और पीएलटी जो है आपको नाम देना है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं मेरा स्टेप साइज क्या होगा? एच जो है मुझे 0.1 दिया हुआ है, राइट। फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा या एरे बनाऊंगा, वन डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ मैं। तो मैं टी टाइम का एरे बनाना चाहता हूँ एरे, क्योंकि मुझे जो टाइम चाहिए यहाँ पे वो ऐसे चाहिए 0, 0.1, 0.2 अप टू 10 तक। मतलब मेरे पास एक तरह से वैल्यूज होंगी, एक एक एरे में मैं स्टोर करा लूंगा इन सारे वैल्यूज को, इन सारी टाइम की वैल्यूज को एक एरे में स्टोर करा लूंगा ताकि बाद में मैं यूज कर सकूँ। तो वन डायमेंशनल एरे बनाने का एक तरीका है इसमें। तो टी इज इक्वल टू एनपी, एनपी क्योंकि नमपाई के लिए मैंने यूज किया एनपी, ठीक है। अब एनपी के अंदर से, ये तो लाइब्रेरी हो गई मेरी, इसके अंदर से मुझे कोई कमांड यूज करनी है। तो कमांड है अरेंज। तो मैं लिखूंगा अरेंज, टी इज इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज। अरेंज क्या करता है? एक एक वन डायमेंशनल एरे बनाता है। वो आपसे पहले पूछेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं आप, 0 से कहाँ तक जाना चाहते हैं? 10 तक जाना चाहता हूँ मैं। और कितना स्पेस देने चाहते हैं 0 से 10 में? जब आप एक स्टेप बढ़ेंगे तो कितना कितना स्पेस रहेगा? तो 0.1 का स्पेस रहेगा। तो मैं यहाँ 0.1 की जगह एच लिख देता हूँ क्योंकि मैंने एच ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो एक तरह से टी एक एरे हो गया जिसमें कि ये वैल्यू स्टोर होंगी 0, 0.1, 0.2 अप टू 10। ठीक है। फिर मैं अ, एक और y जो है, y मेरा सॉल्यूशन हो गया जो कि रंगाकुत्ता मेथड से आएगा, तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियल वैल्यू जो y की है वो एक एरे में मैं स्टोर करा रहा हूँ। एरे को हम वन डायमेंशनल एरे है ये, तो एरे को हम इससे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लिख दिया कि इनिशियल वैल्यू इसकी 1 होगी। ठीक है, ये 1 हो गया मेरा। फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी मुझे चाहिए, तो y एग्जैक्ट लिख रहा हूँ मैं, y एग्जैक्ट। एक और मैंने एक और इनिशियलाइज किया है array, जिसकी वैल्यू भी 1 है क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे रंगाकुत्ता मेथड को भी एक इनिशियल वैल्यू तो चाहिए, वो भी 1 है, और एग्जैक्ट वैल्यू भी फंक्शन की 1 ही है। फिर मैं रंगाकुत्ता मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे हर आइट्रेशंस करनी है रंगाकुत्ता मेथड में, इसलिए एक लूप लगेगा इसमें। तो फॉर लूप यूज कर रहा हूँ मैं। फॉर लूप कैसे काम करता है वो बताता हूँ। तो फॉर आई एक वेरिएबल है, आई इन रेंज, लेट्स से मैं ये लिख देता अभी के लिए, लेट्स से मैं ये लिख देता फॉर आई इन रेंज 10। तो ये क्या करता? ये 9 बार सॉरी 10 बार इस लूप को चलाता। ठीक है। कैसे कैसे? पहले आई की वैल्यू, लूप मतलब ये बार बार चलेगा। अगर मान लो यहाँ लिख देता मैं प्रिंट आई, ऐसे ऐसे लिख देता प्रिंट आई को प्रिंट करना है। तो ये क्या करता, क्या क्या होता है इसका आउटपुट? पहले 0 आता, आई की वैल्यू, फिर 1, 2, 3 अप टू 9 तक जाता, ऐसे प्रिंट करता है। तो ये एक तरह से लूप चल रहा है। तो फॉर आई इन रेंज 10, 10 आप दोगे तो पाइथन में इसमें स्टार्ट हमेशा ये 0 से होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, और जितना आपने दिया उससे एक कम तक जाएगा। ठीक है, तो ये 9 तक जाएगा, मतलब 10 बार चलेगा इस तरह से। बट हमें अभी ये नहीं यूज करना है। तो मैं चाहता हूँ फॉर आई इन रेंज कहाँ तक जाए मेरा आई, जितना इस एरे का लेंथ है, एल
एलियन लेंथ, एलियन क्या देगा, लेंथ देगा आपको, टाइम एरे का मतलब साइज देगा। मान लो इसमें 101 वैल्यूज होंगी एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो और 10 तक जा रहे हो पॉइंट 1 के स्टेप से। तो पॉइंट 1 से अगर स्टार्ट करते तो 100 वैल्यूज होंगी, और जीरो भी आया तो 101 वैल्यूज होंगी। तो एलियन 10 आपको 101 देगा वैल्यू, लेकिन मुझे 100 तक जाना है सिर्फ, तो एलियन -1 कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, तो एलियन मतलब लेंथ ऑफ टी, लेंथ ऑफ टी दे देगा वो आपको, लेंथ मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने पड़े हैं वो देगा आपको। तो मुझे 100 तक जाना है, इसलिए LNT-1 लिखा है, वैसे 101 आएगा LNT। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस प्लीज। ठीक है, फिर मुझे K1 कैलकुलेट करना है। अब मुझे एक इंडेंटेशन देना पड़ेगा पाइथन में, क्योंकि ये लूप के अंदर लिख रहा हूँ ना मैं सब कुछ, तो पाइथन इंडेंटेशन पे काम करता है। मतलब एक स्पेस देना पड़ेगा, टैब टैब दबाना पड़ेगा। टैब मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस देता है, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इंडेंटेशन दिया, जो भी इंडेंट इंडेंट करके जो भी मैं लिखूंगा वो फॉर लूप में चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मुझे पहले K1 कैलकुलेट करना है। तो K1 क्या था मेरा, H टाइम्स H मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ YN TN। तो YN क्या है मेरे पास, ये वाला फंक्शन है, -2y -2 y कौन सा यूज होगा इसमें, आई वाला, क्योंकि आई पे तो मुझे नो नहीं है, क्योंकि आई जीरो से स्टार्ट होगा। तो वाई आई, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैं साइड साइड में एक्सप्लेन करता रहता हूँ क्या है इसका मतलब। जब मैंने वाई आई लिखा, तो यानी कि लेट्स से जब वाई जीरो होगा, तो वाई 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 ऑफ जीरो ऐसे लिखा मैंने। इसका मतलब वाई एरे का वो, क्योंकि 1 डायमेंशनल एरे है, तो वाई एरे का वो जीरोथ एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि पाइथन में जीरो से चीजें स्टार्ट होती हैं, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग मतलब पोजीशन एक तरह से बोल सकते हो। तो वाई के जीरोथ पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो क्योंकि वाई में एक ही एलिमेंट है अभी, तो पहली पोजीशन पे 1 ही है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट 1, वाई ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एक तरह से 1 हो जाएगा 1। तो जब मैंने वाई आई लिखा, तो पहले आई जीरो है पहले लूप में, जब लूप फॉर लूप पहली बार चलेगा, तो मैंने आई वाई वाई ऑफ जीरो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो -2yi +2 माइनस ई रेस पावर -4t था ना, तो ई मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन, तो उसको मैं np.exp से कॉल करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपोनेंट फंक्शन वैसे नहीं है। तो नमपाई लाइब्रेरी में एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, उसको np.exp से कॉल कर लिया मैंने। अब उसमें क्या करना है मुझे, ई रेस पावर -4t। तो EXP में आप डायरेक्ट ब्रैकेट में जो भी देंगे वो पावर में ही जाएगा। तो np.exp -4 टाइम्स टी, टी भी मुझे क्या चाहिए, टी ऑफ आई, पहला टाइम जो कि जीरो रहेगा। ये मेरा हो गया K1। ठीक है, ऐसे ही K2 कैसे लिखेंगे, H टाइम्स, और वाई आई की जगह YI + K1/2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि मुझे YN + K1/2 होता था, तो Y जहाँ भी होगा वहां पे YI + K1/2 आ जाएगा, +2 माइनस np.exp -4, और t की जगह आ जाएगा TN + H/2, तो मल्टीप्लाइड बाय TI + H/2, इस तरह से आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट हो गया, फाइनल ब्रैकेट ही क्लोज होगा। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मुझे कैलकुलेट करना है K3, सो दैट विल बी H टाइम्स -2 टाइम्स YI प्लस K2/2 रहेगा इधर, +2 माइनस
np.exp -4 टाइम्स ti प्लस h/2, क्योंकि tn प्लस h/2 ही होता था उसमें। इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस। ये 4 मत समझ लेना, h है मेरा। माई राइटिंग इज नॉट बिट क्लियर। ओके, सो नाउ वी हैव k4। अच्छा, लूप के बाहर तो कुछ नहीं लिखना है, तो ऐसे नहीं लिख सकता, इंडेंट करके लिखना पड़ेगा। तो k4 ये एक ही लाइन में चलना चाहिए सारा। तो k4 जो है वो h टाइम्स -2 टाइम्स। अब बताइए यहाँ क्या आएगा, टेल मी। Let me call my name. Just wait a minute. Yes, Debanjan, can you tell? Debanjan, are you there? Harsh? Yeah, please tell me यहाँ क्या आएगा. If somebody is asking some question. Sir, why you have written lnt -1 import? Okay. ये इसलिए लिखा है क्योंकि कहाँ तक चलाओगे आप आई को? जी, जीरो से लेके आपको कितनी वैल्यू चाहिए? जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा ये? सर वाई 100 निकालना चाहिए। 100 लिखना चाहिए। तो बात एक ही है, क्योंकि मान लो मैं एच को अगर 0.01 कर दूं, जनरलाइज कोड लिखना है हमें, एच को मैं 0.01 कर दूं तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी टाइम की। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कब कहाँ तक चलेगा ये? मान लो 0.01 का इंक्रीमेंट करता तो ये 1000 हो जाता। मान लो मैं पॉइंट एच को 0.05 करता तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इसलिए मैंने लिखा है LENT जो आपको देगा ना, वो लेंथ ऑफ टाइम, टाइम एरे दे देगा आपको। ठीक है, और वो एक बड़ा होगा, क्योंकि हम जीरो भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। जीरो के बाद आप जाओगे अगले स्टेप पे, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 10। तो 0.1 से अगर आप काउंट काउंट करना स्टार्ट करोगे 10 तक, 0.1 का इंक्रीमेंट लेते हुए, तो 100 आएगा। बट आपने जीरो भी ले लिया तो 101 आएगा ये लेंथ ऑफ टाइम एरे। इसलिए मैंने -1 किया है, ताकि वो 101 -1 100 हो जाए। ऐसे ही हर केस में होगा। अगर आप एच को कुछ भी ले लो, बट सर 0.05। टी के या टेल मी। यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए, यहाँ पे। सर वाई सर -2 into y of I and plus of k3 and plus of 2 हम्म, minus number dot exponent of minus of 4 हम्म, into ti plus h only. करेक्ट। ठीक है, सो नाउ वी हैव k1, k2, k3 एंड k4। सो नाउ वी वांट टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ yn+1। सो हम लिखेंगे y, जो हमारे पास अभी 1 था, एक ही वैल्यू थी उसमें, डॉट अपेंड। अपेंड क्या करेगा, उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देगा उस एरे में। तो y डॉट अपेंड लिखेंगे यहाँ, y डॉट अपेंड, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जो प्रीवियस वैल्यू थी, +1/6 टाइम्स k1 + 2 k2 + 2 k3 + k4। ठीक है, ये हो जाएगी y डॉट अपेंड। और हमें y एग्जैक्ट भी तो चाहिए, y तो y अंडरस्कोर एग्जैक्ट जो हमने लिया था, उसको भी हम नेक्स्ट वैल्यू अपेंड करेंगे। और वो क्या होगी, एक तरह से वो होगी 1 + 0.5, क्योंकि वो थी एग्जैक्ट सॉल्यूशन था 1 + 1/2 टाइम्स
e रेस टू पावर np डॉट exp टू द पावर -4t था तो -4 इंटू टी आई हो जाएगा। टी आई प्लस वन होगा एक्चुअली ये, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम पे चाहिए ना वैल्यू, क्योंकि टी आई पे तो हमारे पास वैल्यू है ही एग्जैक्ट की 1 है। हमें नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे चाहिए, टाइम टाइम स्टेप पे चाहिए, तो इसलिए मैंने टी आई प्लस वन लिखा है यहाँ। ठीक है। अम, फिर होगा -0.5, क्योंकि अगला जो टर्म इसमें -1/2 ई रेस पावर -2t था, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ इधर -0.5 -0.5 टाइम्स np डॉट exp -2 टाइम्स t i प्लस वन, इस तरह से हो जाएगा। फाइन। ओके। So this will be the exact solution and that's it actually। यहाँ पे हो गया आपका रंगा कुत्ता खत्म। अब आपके पास लेट से आई इक्वल टू जब जीरो रहेगा तो आपके पास आई इक्वल टू जब जीरो रहेगा तो आपके पास वाई जीरो और टी जीरो अवेलेबल है। उससे आपके पास वाई वन और टी वन आ जाएगा एक तरह से। टी वन तो टी वन प्लस एच ही होगा बेसिकली, जो कि इस एरे से मिलता रहेगा आपको। तो जब आई जीरो के बाद वन होगा तो आपके पास वाई वन चाहिए होगा, जो कि पहले आपने कैलकुलेट कर लिया है। वाई एरे में अब दो वैल्यूज आ चुकी होंगी, वाई ऑफ जीरो और वाई ऑफ वन, जो कि रंगाकुत्ता से कैलकुलेट हो चुकी है। तो वाई ऑफ वन यहाँ यूज हो जाएगा, और टी ऑफ वन आपके पास ऑलरेडी है इस एरे में, जो कि 0.1 होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। और इस तरह से K1 K2 K3 K4 कैलकुलेट हो जाएंगे सारे। फिर आपके पास y ऑफ टू जो आएगा वो आएगा y ऑफ वन प्लस 1/6 ऑफ ऑल दीज टर्म्स। सो आपके पास अब जो टर्म्स रहेंगे, तीन टर्म्स हो जाएंगे, y ऑफ जीरो, y ऑफ वन और y ऑफ टू, जब आपका आई वन है। ठीक है। और आपके पास एग्जैक्ट में भी वैसे ही अपेंड होता रहेगा, तो जब आपके पास आई जीरो रहेगा तो वाई एग्जैक्ट में दो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। वाई ऑफ जीरो और वाई ऑफ वन। वाई ऑफ जीरो तो ऑलरेडी ये था वन, और वाई ऑफ वन यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा और t इज इक्वल टू 10 तक पहुंच जाएगा। नाउ फाइनली यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि जब ये आई जो है वो एक कम तक चलेगा एक्चुअली में, तो जब आई 99 होगा, ठीक है, तो क्योंकि इसमें टोटल 100 वैल्यूज हैं, तो वाई 99 पे ये 0.99 देगा टाइम। ठीक है। तो 0.99 टाइम पे रंगाकुता मेथड आपको नेक्स्ट टाइम स्टेप यानी कि t इज इक्वल टू 10, सॉरी 9.9 देगा। जब आई 99 रहेगा तो टाइम की वैल्यू, क्योंकि आप 0.1 टाइम्स हर बार बढ़ रहे हो, तो 9.9 देगा वो, 10 से एक कम। तो 10 से एक कम जब आप इसको वैल्यू सप्लाई करोगे तो रंगाकुता मेथड आपको 10 पे वैल्यू दे देगा। मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी वो 10 पे रहेगी, क्योंकि पिछले टाइम स्टेप पे अगर आपको पता है तो अगले टाइम स्टेप पे रंगाकुता मेथड आपको वैल्यू दे देता है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको टी 10 पे ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे टी आई प्लस वन लिखा है कि इससे एक कदम आगे चलना है एग्जैक्ट सॉल्यूशन को। ठीक है। क्योंकि हमें एक कदम आगे इसलिए क्योंकि रंगाकुता मेथड तो एक कदम आगे ही सॉल्यूशन दे रहा है, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी हमें उसी पॉइंट पे चाहिए। लेकिन रंगाकुता मेथड की कैलकुलेशन के लिए हमें एक कदम पीछे वाला चीजें चाहिए होती है, इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज किया है। ठीक है। एनीवे, सो नाउ लेट्स प्लॉट ऑल दीज रिजल्ट्स। सो क्योंकि हमें मैट प्लॉट, यहाँ पे मैंने यूज किया था मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी इंपोर्ट किया मैंने इसको। तो मैं अब क्या करूंगा, एक फिगर इनिशिएट करूंगा। तो अब मैं इंडेंटेशन खत्म कर दूंगा। ठीक है। ये इंडेंटेशन यहाँ तक चल रही थी, अब मैं इसी लेवल पे आ जाऊंगा इंडेंटेशन की, जो मेरी यहाँ पे है। इसको मैं फोर में जो इंडेंटेशन थी मैं वहीं से लिखना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा फोर लूप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ।
तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा। पहले मैं एक फिगर स्टार्ट करूंगा, plt डॉट फिगर, मतलब इसके नीचे आप जो भी लिखोगे वो सेम ही फिगर में आएगा। इस तरह से मैंने एक फिगर इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो plt, क्योंकि मेरा मैट जो पाई प्लॉट सब मॉड्यूल है मैट प्लॉट लिख के अंदर, उसको मैंने plt से कॉल किया। तो plt डॉट प्लॉट कमांड है उसके अंदर एक। मैं क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, पहले टाइम एरे, फिर वाई जो रंगाकुता मेथड से सॉल्यूशन आया है, और उसको लेट से मैं ब्लैक कलर में प्लॉट करना चाहता हूँ। और ब्लैक डॉट, ब्लैक कलर में प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले ये इन्वर्टेड कॉमास में के लिखूंगा, के मतलब ब्लैक, और ओ लिखूंगा, ओ मतलब मैं उसको एज अ डॉट दिखाऊंगा ग्राफ में, एक डॉट की तरह दिखेगा वो। के वो दिखाएगा मार्कर, और मार्कर कलर एक तरह से दिखा रहे हो, तो मार्कर कलर के हो गया, और ओ आपका मार्कर हो गया। आपको लाइन चाहिए तो आप सीधा ये डैश लिख सकते हैं, तो कंटिन्यूस लाइन आएगी ओ की जगह। ठीक है, फिर मैं इसको लेबल करूंगा कि मेरा लेबल क्या रहेगा इसको, मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको। तो लेबल जो होगा मेरा न्यूमेरिकल, मैं इसको रंगा कुत्ता मेथड से जो सोल्यूशन आ रहा है उसको लेबल कर रहा हूँ कि जो मेरे डॉट 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 है, तो वो डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। वो आपके ग्राफ में भी दिखेगा। फिर मैं लिखूंगा सेकंड ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, plt डॉट प्लॉट, क्योंकि ये सारे एक ही फिगर के अंदर आ रहे हैं, तो एक ही फिगर में एक ही ग्राफ में प्लॉट होंगे ये सब कुछ। तो टाइम सेम रहेगा, लेकिन अब मैं वाई एग्जैक्ट प्लॉट करना चाहता हूँ, एरे। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा में मैं लिखूंगा यहाँ पे रेड कलर में प्लॉट करना चाहता हूँ, और कॉन्टिन्यूस लाइन चाहता हूँ। तो कॉन्टिन्यूस लाइन के लिए डैश लिख दिया मैंने, और इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दिया। और इसको क्या लेबल दूंगा मैं, इसको मैं लेट से लेबल दे देता हूँ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। नाउ कुछ और चीजें मैं करना चाहता हूँ। तो एक्स एक्सिस का क्या नाम रखना है, तो plt डॉट एक्स एक्स एक्सिस का नाम रखने के लिए एक्स लेबल यूज करेंगे कमांड, plt डॉट एक्स लेबल। तो मैं एक्स एक्स एक्सिस का जो नाम रखूंगा वो रखूंगा टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम है, टाइम टी, ये नाम रख दिया मैंने। इन्वर्टेड जो भी आपको इन्वर्टेड कॉमास में रख रहे हैं वो एज इट इज प्रिंट होगा वहां पे। इसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम, स्ट्रिंग, क्योंकि कैरेक्टर्स यूज किए हैं हमने, सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज किए हैं इसलिए स्ट्रिंग है। तो ये टाइम टी वाली स्ट्रिंग वहां प्लॉट हो जाएगी, वहां पे प्रिंट हो जाएगी एक्स एक्सिस के नीचे। सिमिलरली वाई एक्सिस के नीचे ये सारा स्मॉल लेटर्स में चल रहा है। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और अपर केस लेटर्स का अलग अलग मीनिंग होगा, तो ये ध्यान रखना है। जहाँ स्मॉल लेटर यूज हो रहा है वहाँ स्मॉल यूज करना है। तो मैंने ये इसका नाम रख दिया सॉल्यूशन वाई, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा वाई एक्सिस पे। फिर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये लेबल दिया है कि डॉट डॉट वाला सॉल्यूशन मेरा न्यूमेरिकल है और रेड कॉन्टिन्यूस लाइन वाला एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, तो इसको ग्राफ में लेजेंड आता है एक, तो मैं चाहता हूँ ये दिखे, तो ये लेजेंड में दिखेगा। तो plt डॉट लेजेंड मैं लिख दूंगा, इसमें कुछ डाल नहीं रहा मैं, एज इट इज लिखूंगा तो विजिबल हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राफ में ग्रिड लाइंस भी दिखें, तो मैं plt डॉट ग्रिड और अंदर ट्रू कर दूंगा तो वो दिखने लगेंगे। ठीक है, फिर मैं लास्ट में चाहता हूँ अपने ग्राफ को, ये सब तो ग्राफ हो गया, मतलब कमांड्स मैंने सारी लिख ली। फिर मैं चाहता हूँ मेरा ग्राफ शो हो स्क्रीन पे, तो मैं लिख दूंगा plt डॉट शो, शो होगा। ठीक है, या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। सो दिस वाज द कंप्लीट कोड। नेक्स्ट असाइनमेंट मैं देना चाहूंगा इसके बाद, फिर मैं इसको गूगल कोलैब पे भी लिख के दिखाता हूँ। सो वी हैव असाइनमेंट 2, प्लीज नोट इट डाउन। इसमें हमें सॉल्व करना है, सॉल्व सेकंड ऑर्डर, मैंने स्टेट स्पेस अप्रोच पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो पहले इस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू विल अप्लाई फोर्थ ऑर्डर रंगाकुत्ता मेथड। सो यू हैव टू सॉल्व द सेकंड ऑर्डर
ordinary differential equation using state space approach. And Runge-Kutta method of fourth order RK4 method. ठीक है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 2 e raised to power 4x. ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें दो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो इनिशियल कंडीशन होंगी. सो y इज इक्वल टू y एट टाइम y एट x इक्वल टू 0 इज 1, और dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 जो है वो 0 है. और इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जिससे कंपेयर करना है दैट इज y of x is equal to 1 by 8 e raised to power 3x plus 7 by 8 e raised to power minus x plus x by 2 e raised to power 3x. Okay, and you have to program it. Use Python programming. So, has everybody noted down this assignment? And you have to submit this by Thursday 6 p.m. I mean before next class 6 p.m. Legend क्या है वो मैं समझाता हूँ. So let me show you the code. Just let me share the screen. So let me just write assignment 1 code here. So जो भी हमने लिखा है मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ. You can ask me questions if you have. Just wait a minute. मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? Share screen. Yeah, now it is visible. ठीक है. So let me start writing the code. तो यहाँ हम पहले लिखेंगे import numpy as np. ठीक है, फिर हम लिखेंगे import matplotlib dot py dot as plt. फिर हम h को 0.1 इनिशियलाइज करेंगे एंड देन वी लिखेंगे t इज इक्वल टू, फिर हम अपना टाइम एरे लिखेंगे t इज इक्वल np डॉट अरेंज. 0 से लेके 10 तक जाना है हमें, स्टेप साइज सी एच का. फिर हम y को इनिशियलाइज करेंगे, y की पहली वैल्यू 1 होगी और y एग्जैक्ट की भी पहली वैल्यू 1 होगी. ठीक है, फिर हम फॉर लिखेंगे फॉर i इन रेंज लेंथ जितनी है हमारी टाइम एरे की वो डाल देंगे और उससे एक कम तक चलना है हमें. फिर हम k1 कैलकुलेट करेंगे. सो k1 विल बी इक्वल टू h टाइम्स माइनस 2 इंटू h टाइम्स f ऑफ y इन tn था, तो y इन जो है हमारे पास y i हो जाएगा एक तरह से माइनस 2y y i प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस e रेज़ पावर माइनस 4t था, तो exp माइनस 4 टाइम्स ti. फिर k2 कैलकुलेट करेंगे. सो k2 विल बी इक्वल टू सिमिलर टू k1, बट यहाँ पे y की जगह जो है हमारे पास
y की जगह वाई आई प्लस a1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और टाइम की जगह टाइम प्लस h/2 हो जाएगा, राइट. So similar to K3, similar to K2, we will have K3. So in K3 we have, here we have K2 divided by 2 and time will remain same. That will be t plus h/2. And then we have K4. K4 में यहाँ K1 डिवाइड, यहाँ पे आएगा K3. So यहाँ पे K2 डिवाइड बाई 2 आना था, यहाँ पे K3 आएगा. एंड देन वी हैव Ti प्लस H. So यहाँ पे K1 K2 K3 K4 सेलेक्ट हो गया हमारे पास, कैलकुलेट हो गया. फिर हम y अगले, मतलब इस आइट्रेशन पे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस टाइम स्टेप पे, क्योंकि हमारा जो टाइम स्टेप है वो अभी तो 0 है. तो 0.1 पे टाइम इज इक्वल टू 0.1 पे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वो होगी y जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू थी प्लस 1/6 टाइम्स. आई मीन यू कैन ऑल्सो सी दैट k1 प्लस 2 इंटू k2 प्लस 2 इंटू k3 प्लस k4 डिवाइड बाई 6. ठीक है. फिर हम यहाँ पे y एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे. वो होगा y एग्जैक्ट डॉट अपेंड. हमारे पास वैल्यू थी 1 प्लस 0.5 टाइम्स एक्सपोनेंट माइनस 4t माइनस 4 टाइम्स t जो है वो i+1 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि t टाइम t इक्वल 0 पे तो हमें ऑलरेडी वैल्यू पता ही है. फिर यहाँ पे था -0.5 टाइम्स np डॉट exp -2 टाइम्स t ऑफ i+1. ठीक है, ये y एग्जैक्ट आ गया. अब हम, मैंने अपेंड हटा दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. So now I have to plot the figure. So I'll start a figure. यहाँ पे फिगर स्टार्ट कर दी. So plt डॉट प्लॉट, पहले क्या प्लॉट करना है हमें, टाइम एरे और रंगाकुथा से जो सॉल्यूशन आया है, और उसको हम रखना चाहते हैं ब्लैक, और ब्लैक मार्कर से दिखाना चाहते हैं. और जो लेबल रहेगा इसका, वो हम चाहते हैं कि इसका इसका जो नाम आए वो है न्यूमेरिकल लिखा है इसमें. ठीक है. अगले में हम चाहते हैं plt डॉट प्लॉट टाइम आए, और y एग्जैक्ट से हम कंपेयर करना चाहते हैं इसको, और जो हम चाहते हैं कि रेड रेड लाइन से डिनोट हो, और इसका जो लेबल रहे वो रहे एग्जैक्ट सॉल्यूशन. ठीक है. एंड देन कुछ और चीजें, x का जो लेबल रहेगा plt डॉट एक्स लेबल एक्स एक्सिस पे प्रिंट होगा, वो होगा टाइम t एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे. और जो y y एक्सिस जो डिनोट कर रही है वो सॉल्यूशन है. तो एक तरह से हम लिखेंगे सॉल्यूशन y. ठीक है. उसके बाद नीचे हम जाएंगे. सो plt डॉट लेजेंड, लेजेंड कोई पूछ रहा था क्या होता है, अभी पता लगेगा ग्राफ में. तो और फिर हम ग्रिड लाइन भी चाहते हैं, तो plt डॉट ग्रिड, और यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, और plt डॉट शो शो करते हैं इस ग्राफ. पहली बार कोड लिखने में हमेशा एरर होता है, तो देखते हैं इसमें है कि नहीं. 90% ऑफ द केसेस में पहली बार एरर आता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. यहाँ पे इन लिखना भूल गया हूँ मैं, इन रेंज आएगा यहाँ पे. रेंज में एक ही आर आएगा, दो आर नहीं आएगा. अच्छा, एक्सपी की जगह मुझे numpy से कॉल करना था इसको, numpy डॉट एक्सपी होगा यहाँ पे. सो numpy, क्योंकि एक्सपोनेंट पाइथन के पास खुद फंक्शन नहीं होता कोई, हालांकि मैंने इसमें यूज किया, इसमें यूज करना भूल गया था.
लेबल लिखना था, लेबल का स्पेलिंग गलत लिख दिया. Now it is fine. Okay, so यहाँ पे देखिए फाइनली सॉल्यूशन आया है. सो दिस इज लेजेंड यहाँ पे जो शो हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, ये वाला लेजेंड है जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ब्लैक डॉट जो है वो न्यूमेरिकल होगा, वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दिखा रहा है, और जो रेड लाइन है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिखा रही है. और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है. रंगाकुता मेथड बहुत ही एक्यूरेट है. और आप मतलब अगर मैं इसको और एक्यूरेटली देखना चाहता हूँ तो हर पॉइंट एग्जैक्ट सॉल्यूशन का मैं लेट से स्टार स्टार मार्कर से देखता हूँ. तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये स्टार मार्कर है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, और ब्लैक डॉट जो है वो रंगाकुता मेथड से आया है. सो बोथ आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग. सो दैट्स व्हाई RK4 method is very accurate, very much accurate. If someone is asking question. Now it is clear what is legend. Is it clear? Okay. So I stop. Yeah, if you have any question in this code, you can ask me. Okay, if there are no questions, we'll stop here for today. And by referring to this code and the state space approach that I have taught, please make assignment 2 and submit it by Thursday. Yeah, so I'm stopping my screen share. Yeah, thank you. Okay, sir. Thank you.